Good morning, students. Today we are going to start with a very new chapter from the book It So Happened, that is chapter 10, The Comet Second. As I have told in my previous video, that the comet chapter is bifurcated into two parts. First part we have studied in chapter 9, and second part we are going to study in this chapter. Okay, so, what we have studied in the first part, we have studied that there was a person whose name was Shri Manoj Datta. He discovered a new comet, and his comet name was Comet Datta. Okay, then we also studied that there was a conversation between a British scientist whose name was Dr. James Fawcett and a defense science advisor and whose name was Sir John Macpherson. Okay, so there is a conversation between them, and they are talking about what they are talking about the comet Datta. Okay, because the comet Datta is soon going to collide with Earth. So to come into a solution, to bring any solution, they organize a conference of experts. Okay, now what happened in that conference, how the conclusion is drawn, how the solution is taken, so we are going to study that in this chapter. So let's begin with this three summarization point. First is Dattada is invited to the secret conference. Now in this conference Dattada was also invited because Dattada was the uh, person who discovered that comet. That's why Dattada was also invited in this secret conference. How to change the course of Comet Datta is the scientist's hidden agenda. Now, the main motto of the scientist was that the course of Comet Datta. Course of Comet Datta means that the natural calamity, that the calamity that comet is going to be collide with Earth. They are the main motto of the scientist was to find the solution towards that problem. Dattada and the defense advisor became close friends and share a secret. And during the secret conference, Dattada and defense advisor, who was Sir John Macpherson, they became good friends and they also shared their one secret. Okay, so let's start the chapter. What happened in that particular part? By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street, it was 1 a.m. अब क्या हुआ कि जो डॉक्टर जेम्स फॉर्सथ थे और जो सर जॉन मैकफर्सन थे, इनके बीच में क्या हो रहा था, इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा था जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. ठीक है, अब इनके जब कॉन्वर्सेशन था, जब वो ख़त्म हुआ तो जो सर जॉन मैकफर्सन थे उन्होंने क्या किया, जो जेम्स फॉसेट थे उनको रेजेंट स्ट्रीट, उनका जो होटल था, वहाँ पर सुबह 1 बजे ड्रॉप किया. ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, हमने ये पढ़ा था ना कि उन्होंने जो लेटर सेंड किया था जेम्स फॉसेट को, उन्होंने बोला था कि हम आपके लंदन में रहने का रात का सारा इंतज़ाम कर चुके हैं, अब आप आ जाओ. ठीक है, तो अब वैसे ही जैसे उन्होंने रात का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें जाकर होटल रेजेंट में जाके छोड़ दिया. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. अब क्या हुआ कि रास्ता जो था सुबह बहुत ही कम क्राउड था. ठीक है, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, एक आध लोग ही वहाँ पे दिख रहे थे. तो क्या हुआ, जेम्स जो थे, जेम्स फॉर्सेथ, उन्होंने क्या करा, अपना जो कार का विंडो था उसको खोलते हुए थोड़ा सा आसमान की तरफ देखा. तो क्या हुआ, वहाँ पे जो आसमान था वो स्टार स्टडेड का मतलब होता है पूरे स्टार्स से भरा हुआ था. अच्छा, स्टार्स जो थे अच्छे से ट्विंकल कर रहे थे. ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं जेम्स फॉसेट को. ठीक है, विश कर रहे हैं उन्हें. Somewhere amongst these stars were Comet Datta heading for a collision with the Earth. और कहीं इन्हीं स्टार्स के बीच में जो कॉमेट दत्ता था वो भी घूम रहा था. ठीक है, जो क्या हो रहा था, अर्थ से कोलाइड होने वाला था, टकराने वाला था. इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलामिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट. उन्होंने कहा कि इतना बहुत ही मुश्किल हो रहा था ये समझना कि इतनी पीसफुल नाइट में कभी कोई ये नहीं सोच पाएगा कि कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटी होने वाला है, कि अभी अर्थ ख़त्म होने वाला है. कोई ऐसा नहीं सोच पाएगा. उस टाइम पे वो जो नाइट थी, वो जो रात थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत पीसफुल थी. फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट. और एक टाइम पे जो जेम्स फॉसेट थे उन्होंने खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया कि क्या मैंने जो कैलकुलेशंस की थी, जो मैंने सम्स किए थे, क्या वो सही थे रिगार्डिंग दैट कॉमेट. Whatever doubt James may have had Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there.
अब क्या हुआ, जो जेम्स फॉर्सेट थे उन्होंने क्या बोला, उनका जो एक डाउट था सर जॉन मैकफर्सन को लेकर, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी काबिलियत को लेकर, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। डिस्पेल्ड मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है, ख़त्म हो गया था। कैसे? जब अगले दिन जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि जितनी भी एक्सपर्ट्स जो जेम्स फॉर्सेट ने बनाए थे लिस्ट में, वो सारे के सारे एक्सपर्ट जो थे अगले दिन वहाँ पर अवेलेबल थे कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। तो जो जेम्स फॉर्सेट थे उन्होंने जो सर जॉन मैकफर्सन को लेकर उनके लेकर एक इमेज क्रिएट की थी, वो सारी इमेज जो थी वो ख़त्म हो गई थी उनकी। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजीज, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर। नाउ हु वर देयर, कौन कौन लोग थे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में? एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, ये सारे के सारे जो थे उस टाइम पे उस कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट थे। And as Sir John's special invitee was the present the man who had started it all, मनोज दत्ता। और जो सर जॉन मैकफर्सन के एक स्पेशल इन्विटे थे, यानी कि स्पेशली इनविटेशन जिसको गया था, वो कौन थे? मनोज दत्ता, जिन्होंने ये जो कॉमेट था इसको डिस्कवर किया था। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। कॉन्फ्रेंस जो था वो कब तक चला था? वो चला था 1 वीक तक, ठीक है, 1 वीक तक कॉन्फ्रेंस चला, और वो भी पूरे सीक्रेसी यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से। किसी को नहीं पता चल रहा था कि कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है जहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो है वो आए हैं, किसी को नहीं पता था। पर ये कॉन्फ्रेंस जो था ये 1 वीक तक चला था। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स checked and rechecked James Forsyth calculation with the latest observation of comet दत्ता। नाउ वो लोग भी जब एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? उन्होंने यही किया कि जो जेम्स फॉर्सिथ के जो कैलकुलेशंस थे, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन कॉमेट दत्ता को लेके किए गए थे, उन चीज़ों को उन्होंने क्या किया? चेक किया। चेक करने के बाद उसे रीचेक भी किया, और उसके बाद क्या हुआ? ही वॉज राइट, देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम। और उन्होंने भी कहा कि जो जेम्स फॉर्सिथ थे वो बहुत सही हैं, ठीक है, कोई तरीका नहीं है कि जो अर्थ है वो कोलाइड नहीं होगा कॉमेट से, पक्का कॉमेट जो है अर्थ से कोलाइड होने वाला है। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। उन्होंने बोला कि वहाँ पे बस एक बहुत ही छोटा सा ऐसा चांस है कि मे बी जो कॉमेट है वो क्या करेगा, वो अर्थ से ग्रेज हो जाएगा। ग्रेज मतलब बहुत ही पास से निकल जाएगा उसके, ठीक है, उसे टच करके निकल जाएगा, उसको कोलाइड नहीं करेगा, बस टच होकर निकल जाएगा। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे ना तो लाइफ को कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही किसी प्रॉपर्टी को कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। बट दिस स्लाइट रिस्पाइट वॉज हार्डली रीअश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। और उन्होंने कहा कि पर ये जो छोटा सा चांस है, ठीक है, ये नहीं है कि हम कोई एक्शन ही ना ले और इसी चांस के ऊपर डिपेंड रहे कि हाँ भाई वो ना वहाँ से अर्थ को बस छू के निकल जाएगा और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा चांस है, मे बी ऐसा ना हो, मोस्टली चांसेस तो ना होने के ही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इस पे भरोसे पे बैठे नहीं रहना है, हमें कोई ना कोई एक्शंस लेने हैं। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, वट फॉर्म शुड इट टेक। अब उन्होंने बोला कि अब ये डिसाइड तो हो गया कि भाई एक्शन लेना है, बट अब एक्शन लेना क्या है, करना क्या है? द एक्सपर्ट्स डिसमिस डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स। अब जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने इस चीज़ को तो मना कर दिया कि हम कोई डिफेंसिव मेजर लें, मतलब डिफेंसिव मतलब होता है अपने बचाव के लिए, ठीक है, अपने बचाव के लिए कुछ ऐसा मेजर ले कि हम क्या करें, अंडरग्राउंड बंकर्स बना लें, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो घर बना लेते लोग, वैसा बंकर बना लें कि हम उससे बचे रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो एक्सपर्ट ने मना कर दिया था। डिसमिस मतलब मना करना, डिनाई करना, ठीक है, एक्सपर्ट्स ने इसके लिए मना कर दिया था। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजिशन। उन्होंने कहा कि ये सिंपली प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई और हमने क्या करा, उससे बचने के तरीके ढूंढे रेदर देन उसको सॉल्व करना, ठीक है। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। और इसलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है और वो क्या है कि हमें ऑफेंसिव एक्शन लेना है, यानी कि हमें उस प्रॉब्लम से लड़ना है। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। उन्होंने कहा कि हम कॉमेट दत्ता को क्या कर सकते हैं, उसका जो रास्ता है, ठीक है, उससे हम उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं बाय गिविंग अ पुश, ठीक है, हम उसको धक्का मार के उसका जो रास्ता उसको चेंज कर सकते हैं, सर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task. अब जितने भी experts थे उन्होंने calculate किया, सब calculations वगैरह करी, उसके बाद उन्हें क्या पता चला कि जितना भी nuclear power earth में available है, ठीक है,
जितना भी न्यूक्लियर पावर अर्थ में अवेलेबल है उतना उन्हें चाहिए था, ताकि ये जो मैमूथ मतलब इंटेंसिव टास्क था, ये जितना बड़ा टास्क था कि हम कॉमेट का डायरेक्शन चेंज कर दें, उस टास्क में सबसे ज़्यादा हमारा हेल्प कौन कर सकता है? न्यूक्लियर पावर। ठीक है, जितना भी न्यूक्लियर पावर अर्थ में अवेलेबल था उन लोगों ने उन सारे पावर्स को यूज़ करने का सोचा था, ताकि वो क्या कर सके, कॉमेट का जो डायरेक्शन उसको चेंज कर सके। अ जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन suitably placed, suitably directed and suitably timed could टू द ट्रिक। उन्होंने कहा कि अब जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो तभी हम कर सकते हैं अगर हम उसको पहले सही प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कॉमेट एक तरफ है, हमने उसको दूसरी जगह रख दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, वो कहीं और जाके एक्सप्लोड हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको सही प्लेस पे रखना है, सही डायरेक्शन में रखना है कि जिस डायरेक्शन में क्या है हमारा कॉमेट है, हम उसी डायरेक्शन में उसको रखेंगे। और सही टाइम पे हमें क्या करना है, अपना जो न्यूक्लियर पावर है उसको एक्सप्लोड करना है। ठीक है, this could be done by placing the nuclear payload in a spaceship, sending it to intercept the approaching comet and detonating it by remote control। और उन्होंने कहा कि अभी इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जितना भी न्यूक्लियर उसको पेलोड में, पेलोड का मतलब होता है जिसमें हम सामान डाल के रखेंगे। ठीक है, सारा लोड कर देंगे न्यूक्लियर को लोड करेंगे और उसके बाद उसको स्पेसशिप में रखेंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि सोलर सिस्टम में तो वही जाएगा, हम तो जाने से रहे ऐसे गाड़ी में बैठ के, है ना। तो क्या होगा कि न्यूक्लियर पेलोड यानी कि उस न्यूक्लियर को जितना भी था उसको लोड किया। ठीक है, लोड करने के बाद उसे स्पेसशिप में रख दिया, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट, और उसको भेज दिया ताकि वो क्या करे, जो हमारा कॉमेट है उसको इंटरसेप्ट करे, यानी कि उसका जो रास्ता, उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सके। एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल से। सक्सेस और फेलियर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। उन्होंने बोला कि चाहे हम सक्सेसफुल हों चाहे हम फेल हों, पर ये क्या होगा, कंप्लीटली एक सीक्रेट टास्क होगा, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं। Finally, a timetable was drawn up for the operation which was code named Project Light Brigade। अब फाइनली क्या हुआ, अब कुछ भी काम करने से पहले लोग हर कोई टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इस ऑपरेशन को करने से पहले एक टाइम टेबल मेंटेन किया गया। ठीक है, टाइम टेबल बनाया गया, उस टाइम ऑपरेशन का नाम क्या रखा इन्होंने, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, दैट वाज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब टाइम टेबल भी इंपॉर्टेंट है कि किस दिन क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थे हमारी, सबसे पहले अक्टूबर 10। ठीक है, अक्टूबर 10 को क्या हुआ, डिस्पैच द स्पेस क्राफ्ट विद द पे लोड अनलेस बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज और हैज़ चेंज इट्स पाथ ड्यू टू अनफॉरसीन रीजन्स। उन्होंने क्या कहा था कि 10 अक्टूबर को हम क्या करेंगे, हम अपना जो स्पेस क्राफ्ट है उसको डिस्पैच करेंगे, यानी कि उसको भेज देंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम में उसको वहाँ भेजेंगे, और जितना भी हमने पे लोड किया, यानी कि जितना भी हमने न्यूक्लियर जो था जितना भी लोड किया है उन सबको स्पेस क्राफ्ट में डालेंगे, स्पेस क्राफ्ट को डिस्पैच कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, पर ये हम तब करेंगे कि जब अगर हमारा जो कॉमेट है वो किसी नेचुरल रीजंस की वजह से जो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, स्प्लिट ना हो गया हो, टूट ना गया हो और किसी एस्ट्रॉइड से टकरा ना गया हो। ठीक है, या तो हम तब कर सकते हैं इसको कि जब हमारा जो किसी रीज़न से कॉमेट जो अपना रास्ता भटक जाए। ठीक है, अगर ये दो केसेस हो गए तो हमें अपना स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च करने की ज़रूरत है नहीं, वो डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये नहीं हुआ और हमारा कॉमेट अभी भी टकराने वाला है अर्थ से, तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्पेस क्राफ्ट जो है उसे डिस्पैच कर देंगे, यानी कि भेज देंगे। ठीक है, नवंबर 15 में क्या हुआ, रेंडोवस विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पे लॉर्ड। अब इन्होंने क्या बोला कि अब जो रेंडोवस का मतलब होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉमेट के साथ। ठीक है, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है और जो कॉमेट है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जिसके बाद क्या होगा, डिटोनेशन ऑफ द पेलोड, यानी कि वो क्या कर देंगे, एक्सप्लोड कर देंगे जितना भी न्यूक्लियर हमारे पास था। फिर आता है लास्ट हमारा December 15। इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। उन्होंने कहा कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो ये वो दिन है जब कॉमेट जो है अर्थ को टकरा जाएगा। ठीक है, अर्थ से टकरा जाएगा। इफ़ इट सक्सीडेड दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सेफ हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये वो दिन होगा जब कॉमेट जो है हमारे अर्थ के पास से होके चला जाएगा, बट सब कुछ सेफ रहेगा। ठीक है,
द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज। उन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट है उसका सक्सेस उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा कॉमेट है वो कितना मैसिव है, कितना बड़ा है। नो बडी कुड एस्टिमेट, एवरीबडी होप दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव। अब कोई भी उसको एस्टिमेट नहीं कर सकता था, कोई भी उसको नाप नहीं सकता था, हर कोई यही उम्मीद कर रहा था दैट कि वो ज़्यादा मैसिव ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, दत्ता दा आज सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन। अब जो दत्ता दा है उन्होंने सर जॉन मैकफर्सन से पूछते कि आपको क्या लगता है, क्या हम सक्सीड होंगे, क्या हम सक्सेसफुल होंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबली अफिनिटी फॉर ईच अदर। और वो एक टाइम था, उस वीक में क्या हुआ था कि दोनों का एक दूसरे को लेके, एक दूसरे का नेचर को लेके थोड़ी सी जो लाइकिंग थी वो बढ़ रही थी, ठीक है। एक दूसरे का नेचर जो है दोनों को अच्छा लग रहा था, तो क्या हो रहा था, वो दोनों अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन रहे थे। Mr. Datta, I will give you an honest answer. I am not buying any Christmas present till December 15. जो अब जो सर जॉन मैकफर्सन थे उन्होंने बहुत क्लियरली, बहुत कामली बोल दिया कि देखो मिस्टर दत्ता, मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15, कि मैं December 15 तक तो कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो शायद अर्थ टकरा जाएगा, शायद कॉमेट जो अर्थ से टकरा जाएगा, और वो जब टकरा जाएगा तो गिफ्ट का मैं क्या करूँगा, सिर्फ सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक क्रिसमस के लिए भी कोई गिफ्ट नहीं खरीदा है, मैं 15 दिसंबर तक तो कोई गिफ्ट नहीं खरीदने वाला। Datta Da toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. अब जो दत्ता दा थे वो अच्छे से घूमना फिरना उनका चल रहा था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस के 2 हफ्ते बाद भी वो वहाँ पे घूम रहे थे ब्रिटिश में, अच्छे से इधर उधर घूम रहे हैं, चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उनका बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड हो रहा था। वो क्या कर रहे थे, जितने भी साइंटिस्ट वहाँ पे आए थे, क्योंकि अब एक्सपर्ट की मीटिंग थी तो साइंटिस्ट भी आए थे, ठीक है। का जो भी प्रोफेशनल साइंटिस्ट आए थे, जो नॉन प्रोफेशनल साइंटिस्ट आए थे, ये सब जो भी आए थे, इनके साथ वो क्या करने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे के ऑब्जर्वेशंस जो थे उनको शेयर करने लगे। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय द इनएविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स। अब वो जब वापस आ गए थे तो क्या हो गया कि जैसे ही वो वापस आए ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने उनको घेर लिया था, ठीक है। अब वहाँ पर क्या क्या थे, उनके फ्रेंड्स थे, कोई सोशल लीडर्स यानी कि वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, स्टूडेंट्स हो गए, एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन। और यूजुअल हैंगर्स ऑन का मतलब क्या होता है, वो लोकल पीपल, ठीक है, जो बस इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं हैंगर्स ऑन। तो उन लोगों ने भी आकर घेर लिया, जिनका कोई काम नहीं होता बट वो आके लोगों को घेर लेते। तो बेसिकली उस टाइम पे जैसे दत्ता दा वापस आए थे तो उनको सबने घेर लिया था, ठीक है। पूरी भीड़ उनके आगे पीछे जमा हो गई थी, उनके फ्रेंड्स थे, सोशल लीडर्स यानी कि पॉलिटिशियंस वगैरह थे, स्टूडेंट्स थे, और बाकी के जो लोग थे, उन सब ने उनको घेर दिया था। Loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. अब वो क्या हो गया, तो उनको लोगों ने इतनी फूलों की माला, गार्लैंड्स मतलब फूलों की माला, ठीक है, बहुत सारी फूलों की माला जो थी वो पहना दी, तो वो उनसे पूरे भर गए थे। एंड बॉम्बार्डेड बाय क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेस, यानी कि प्रेस जो थी उनसे बहुत बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी, ठीक है। बॉम्बार्डेड का मतलब जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एकदम से पूछने लग जाता है, तो प्रेस भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो थी वो दत्ता दा से पूछने लगी थी। तो बहुत ही कोशिश करने के बाद कैसे कैसे करके जो कार उनके लिए वहाँ पे वेट कर रही थी वो उस वेटिंग कार तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले देयर आर समराइजेशन पॉइंट्स कि हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले सेकेंड पार्ट में। सो द फर्स्ट वन इज दत्ता दा रिटर्न्स होम टू अ वार्म वेलकम एंड अ सेरेमनी विच इज़ नॉट अ साइंटिस्ट डिलाइट। अब जब दत्ता दा अपने घर वापस आए तो क्या हुआ कि वहाँ पे उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, और वहाँ पर एक सेरेमनी भी हो रही थी, ठीक है, जो कि दत्ता दा को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप। अब क्या हुआ कि कुछ एकदम से उनको कोई बात पता चली, जिसको सुन के वो एकदम से अपने जो लोकल स्वीट शॉप थे वहाँ पे पहुँच गए। इंद्रानी देवी says that Khoka, their 8-year-old grandson, has saved the world. Her husband is seriously puzzled. अब जो इंद्रानी देवी है वो कहती है कि उनका जो ग्रैंडसन है जिसका नाम है खोका, ठीक है, वो 8 ईयर ओल्ड है, ठीक है, वो 8 साल का है। अब वो ये कह रही है कि उसने उनका जो 8 साल का ग्रैंडसन है उसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को सेव कर दिया, पूरे वर्ल्ड को उसने बचा दिया। अब जो उनके हस्बैंड है यानी कि जो दत्ता दा है वो थोड़े पजल से, कंफ्यूज से लग रहे कि क्या बोल रहे हैं। ओके, तो अब हम यही जो है ये इसमें पार्ट में पढ़ने वाले। तो लेट स्टार्ट। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल। अब जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर फिर से भीड़ लगी हुई है, ठीक है, जो कि पंडाल के पास पूरी भीड़ लगी हुई है। ही ग्लांस
क्वेश्चनिंगली एट इंद्रानी देवी, और उन्होंने एकदम से इंद्रानी देवी को देखते हुए, इंद्रानी देवी जो उनकी वाइफ थी मनोज दत्ता की, ठीक है, उनको देखते हुए उन्होंने बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि उन्हें पता है कि मुझे भीड़ नहीं अच्छी लगती, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, बट स्टिल उन्होंने इतनी भीड़ जो है यहाँ पे लगा रखी है। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स, वो कह रहे हैं कि पक्का उसे पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है, कितना गुस्सा आता है मुझे क्राउड्स को देख के, भीड़ को देख के। इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन, अब जो इंद्रानी देवी थी वो भी फिर थोड़ा अनईजी हो गई, ठीक है, अनईजी तरीके से वो अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो देने लगी, वो बताने लगी कि क्यों इतनी भीड़ है, क्या हो गया। आई हैव अरेंज्ड अ यजना एंड कॉल प्रीस्ट टू ब्लेस यू, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे क्या है एक यजना अरेंज करा है, यजना मतलब हवन वगैरह जो होता है ना उसको अरेंज किया है, ठीक है, और मैंने प्रीस्ट यानी कि पंडित बुलाया है ताकि वो आपको ब्लेस कर सके, आपको मतलब आशीर्वाद दे सके। बट वाई? Just because I left the shores of India? You know it is no longer taboo. And in any case, you know my views on these meaningless rituals. और उन्होंने क्या बोला कि अब जो दत्तादा है वो अपनी वाइफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों क्यों तुमने ये सब किया, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने इंडिया छोड़ दिया इसलिए क्योंकि हमने अपना ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट जो आपके हनी ड्यू का चैप्टर था, हमने उसमें पढ़ा था कि क्या बोला था उसमें कि अगर मान लो किसी ने नदी भी क्रॉस कर दी तो उनका जो रिलीजन है वो चेंज हो जाता है। तो वही जो यहाँ पे था कि उस टाइम का जो सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास था कि लोग ये करते थे कि जैसे किसी ने नदी क्रॉस कर दी तो वो कहते कि भाई उसका रिलीजन चेंज हो गया, या नदी क्रॉस करना इन द सेंस कि मतलब किसी ने अपना पर्टिकुलर एरिया छोड़कर दूसरे एरिया चले गए तो हम उसको बोलते कि भाई उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, या वो बंदा अब हमारी रिलीजन का है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि तुम ये कर क्यों रहे हो, ये यजना, ये हवन वगैरह ये हो क्यों रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने इंडिया छोड़कर मैं बाहर चला गया था। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टैबू, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये अब कोई इतना बड़ा टैबू नहीं है। टैबू का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी रिलीजियस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो ना, उसको हम बोलते हैं टैबू, ठीक है। एंड इन एनी केस यू नो वाई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स, और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें भी पता है कि मेरे क्या व्यूज़ है इन मीनिंगलेस रिचुअल्स के लिए, ठीक है, ये जो फालतू की चीज़ें आप करते हो आपको भी पता है कि मेरे क्या व्यूज़ है उसको लेके। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, अब इंद्रानी देवी जो है उन्होंने क्या करा, एकदम से शिवाजी बाबू को देखा। शिवाजी बाबू कौन है? दत्तादा, मनोज दत्तादा के वो यंगर ब्रदर यानी कि छोटे भाई हैं, ठीक है। अब वो देख रहे हैं उनको कि भाई आप ही कुछ समझाओ इन्हें बोलकर। शिवाजी बाबू कव्ड एंड एक्सप्लेन, अब शिवाजी बाबू जो है वो थोड़ा सा हल्का सा खांसते हुए एक्सप्लेन करने लगे, बताने लगे। वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट, उन्होंने कहा कि जब से तुमने कॉमेट डिस्कवर किया ना हम सारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। गुरु जी रिकमेंडेड अ शांति यजना टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट, अब जो गुरु जी हैं उन्होंने कहा कि भाई तुम ये शांति यजना या शांति हवन कराओ ताकि जो भी कॉमेट को लेके जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाए। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यजना, हम सारे के सारे आपका वेट कर रहे थे ताकि आप क्या करो, ये यजना, ये जो पूजा, ये रिचुअल यानी कि ये जो हवन है इसको आप करो, हम इसके लिए आपका वेट कर रहे थे। मे आई नो वट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी, दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम, अब दत्तादा जो थे वो बाहर से बिल्कुल काम लग रहे थे, एकदम शांत, ठीक है। अब उन्होंने एकदम वैसे ही पूछा शांतिपूर्वक कि क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेरेमनी का ये जो यजना, ये जो हवन चल रहा है इसका क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा होगा। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ, अब उन्होंने क्या बताया कि भाई जो कॉमेट तुमने डिस्कवर किया है ना वो अर्थ में कोई खराबी नहीं करेगा, कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है, वो बिल्कुल अर्थ से नहीं टकराएगा। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप, डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशन, और इस बात पे क्या हो गया, दत्तादा एकदम से गुस्सा हो गया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब सुपरस्टिशन है, ये सब अंधविश्वास है। इट कुड बी condoned इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर, उन्होंने कहा कि ये हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉन्डोन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, तभी मान सकते हैं जब मतलब पहले के टाइम पे हम ये चीज़ें मान सकते थे क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि कॉमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, और आज के टाइम पे तो हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग इस तरीके से सुपरस्टिशियस होते जा रहे हैं। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर, देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसाइसली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड इट इज क्लियरली established by statistical studies that their visits have no correlations with disasters on the earth, अब उन्होंने बोला कि कॉमेट्स जो हैं वो वही हैं जो वो होते हैं, ठीक है, उनका जो मूवमेंट है वो पर्टिकुलरली मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, उनका एक एक चीज़ जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, उन
कॉमेट्स का और अर्थ में आने वाली जो भी कैलेमिटीज़ है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। कोरिलेशन मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ये सब बेकार है मेरे पार्ट से, मेरे को आपको ये एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहिए। यू एंड द लाइक्स ऑफ यू नेवर रेड इवन द एलिमेंट्री बुक्स ऑन साइंस। उन्होंने बोला कि तुम और तुम्हारे जैसे, लाइक्स ऑफ यू मतलब तुम और तुम्हारे जैसे, इन लोगों ने कभी भी साइंस की बेसिक बुक जो होती है, एलिमेंट्री यानी कि जो बेसिक बुक्स भी होती है साइंस की, वो भी आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ी। शिवाजी बाबू गेट gently interjected but our wise forefathers recommended such yajnas। उन्होंने शिवाजी बाबू जो है फिर वो उन्होंने आराम से बीच में इंटरजेक्ट यानी कि इंटरफेयर करते हुए बोला कि हमारे जो फोर फादर्स यानी कि हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने तो बोला, उन्होंने तो रिकमेंड किया, उन्होंने तो बोला कि यजना करना है, ठीक है, हवन करना ही है। Since his return from London, दत्तादा was in regular correspondence with Sir John Macpherson। अब उन्होंने बोला कि जैसे लंदन से वापस आने के बावजूद भी जो दत्तादे थे वो कंटिन्यूसली सर जॉन मैकफर्सन के कांटेक्ट में थे, ठीक है, करस्पॉन्डेंस यानी कि उनके कांटेक्ट में थे, उनसे बात कर रहे थे। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रॉन आउट ऑफ देयर अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज़। और उनका जो फ्रेंडशिप था वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे के जो व्यूज़ है उनको अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। Sir John admired Dattada's scientific outlook while the latter admired the former's discipline and efficiency। सर जॉन मैकफर्सन जो थे वो दत्तादा के जितना भी साइंटिफिक वर्क था, साइंटिफिक आउटलुक यानी कि वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, उसको लेके बड़े खुश थे, ठीक है, बहुत उनको अच्छा लगता था। और धीरे धीरे तो उन्होंने क्या करा, जिस तरीके के दत्तादा थे ना, डिसिप्लिन, एकदम इफ़िशेंसी, उनकी एकदम काबिलियत वाले इंसान थे, एकदम डिसिप्लिन थे, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो सर जॉन मैकफर्सन है वो बहुत ज़्यादा एडमायर होते, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको। देयर करस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, ऑल्दो वंस इन अ वाइल सर जॉन वुड हिंट एट इट्स प्रोग्रेस इन अ सब्टल मैनर दैट दत्तादा वुड अंडरस्टैंड। उनका करस्पॉन्डेंस यानी कि मतलब दोनों जब रोज़ कॉन्टैक्ट में रहते थे, बट कभी भी सर जॉन मैकफर्सन ने उनको प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने कभी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं करी। बस ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई प्रोग्रेस होगा, अगर वो कुछ भी अच्छा होगा या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, तो वो क्या होगा कि एक तरीके से एक छोटा सा हिंट टाइप का दे देंगे, जिससे दत्तादा जो है वो समझ जाएंगे। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रिडिक्टेड पाथ। और तब तक क्या हो रहा था कि जो कॉमेट दत्ता है वो बिल्कुल अपना वही रास्ता जो तय किया हुआ था कि भाई वो इस रास्ते से जाएगा और अर्थ से कोलाइड होने वाला है, बिल्कुल उसी रास्ते में वो चल रहा था। In due course, it developed its tail. It circled round the sun without breaking apart, nor did it evaporate। अब क्या हुआ कि अब वो क्या करने लगा, सन के साथ वो रिवॉल्व करने लग गया, ठीक है, और वो रिवॉल्व कर रहा था, वो बिल्कुल टूटा नहीं, ना ही वो इवेपोरेट हुआ, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना कि क्या पढ़ा था हमने, कि मे बी जो हमारा कॉमेट है वो क्या हो रहा है, नेचुरल तरीके से गायब हो जाए, या तो वो इवेपोरेट हो जाए, सन के पास एकदम क्लोज आ जाएगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, या तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट होने लग जाएगा यानी कि टूटने लग जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो कॉमेट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, सन के आसपास रिवॉल्व करने लग गया, ना तो वो टूटा और ना ही वो इवेपोरेट हुआ। The scientists on Project Light Brigade therefore knew that the threat of collision was now very much real। और जितने भी साइंटिस्ट जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं अब जो डर है कोलिजन का वो बहुत ज़्यादा कई मायनों में सच है, ठीक है, अब कोलिजन होने वाला है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन। अब क्या हुआ, अक्टूबर का मिड टाइम चल रहा था, तो दत्तादा को क्या हुआ कि सर जॉन मैकफर्सन का एक लेटर आया। In the midst of descriptions of the meeting, the Royal Astronomical Society, the unseasonable warm weather, the opening matches of the football season, and a recent by-election, दत्तादा spotted the sentence he was eagerly looking for। अब क्या हुआ कि उनके पास एक लेटर आया था, ठीक है, लेटर जो था उसमें क्या हो गया था, सीक्रेटली मैसेज लिखा हुआ था। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, उन्होंने क्या क्या लिखा, इन द मिडस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। अब उसको उन्होंने किस तरीके से समझा, दत्तादा जो थे वो सेंटेंस जो था बहुत ही ईगरली देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने उसमें क्या पढ़ा, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बिन लॉन्च्ड ऑन टाइम। तो बेसिकली जो सर जॉन मैकफर्सन थे उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें से क्या
कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, क्या समझे दत्तादा, उन्होंने क्या स्पॉट किया कि उनके लिए क्या मैसेज आया है कि जो लाइट ब्रिगेड है, ठीक है, उसका काम जो हो गया वो हो गया स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, अच्छी की उम्मीद करते हैं, ठीक है, लेट जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तो क्या हो गया, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, ओके तो उन्होंने बोला सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च ऑन टाइम। अब वो कह रहे हैं कि जब स्पेस क्राफ्ट जो है वो भी एकदम टाइम से लॉन्च हो गया है, बट विल इट अचीव द रेंडिवियस इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या, अब वो सोच रहे हैं कि क्या जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है और जो कॉमेट है, क्या वो एक सही टाइम पे एक सही जगह पे आपस में मिलेंगे, ठीक है, रेंडिवियस का मतलब होता है मिलना, ठीक है, मीट। तो क्या वो एक सही टाइम पे एक सही जगह पे आपस में मिलेंगे। विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, कि क्या जो हमारा रिमोट कंट्रोल वर्क करेगा जब डिटोनेशन, यानी कि हमें अपना जो न्यूक्लियर है उसको एक्सप्लोड करना होगा, तो क्या हमारा रिमोट काम करेगा उसे तोड़ने में। वट इफ़ द जाइजेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, और क्या होगा अगर जो हमारा जाइजेंटिक न्यूक्लियर पाइल जो हमने लगा रखी, इतना बड़ा हमने न्यूक्लियर सेटअप वहाँ पे किया है, अगर वो ही फेल हो गया, वो फायर नहीं कर पाया, तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो उस टाइम पे दत्तादा के मन में आ रहे थे, ठीक है। दत्तादा कुड नॉट शेयर हिज एंजाइटी विद एनी वन अराउंड हिम। दत्तादा जो थे वो उस टाइम पे अपना एंजाइटी मतलब अपनी वरीडनेस, ठीक है, जितना वो परेशान हो रहे थे वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे अपनी बातें, आसपास जितने लोग थे वो उनसे शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली इंजॉय द पूजा सेरेमनीज। अब उनको क्या था कि भाई उनको कैसे भी करके खुश होना था, ठीक है, बाहर से उन्हें दिखाना था कि वो बहुत खुश हैं, और जितना भी पूजा सेरेमनी चल रही थी वो उस पर पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल, ठीक है, पूजा सेरेमनी चल रही थी, दिवाली फेस्टिवल चल रहा था, बाकी के फेस्टिवल चल रहे थे, तो ये सब उनमें उन्हें पार्टिसिपेट करना था, और इसलिए वो क्या कर रहे थे, बाहर से बहुत खुश होकर दिखा रहे थे। His sole daytime relaxation was in the company of Khoka, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through दिव्या। उनका जो डे टाइम रिलैक्सेशन, यानी कि वो जो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे, वो कैसे हो रहे थे, जब वो उनका जो ग्रैंडसन था, 8-year-old ग्रैंडसन, ठीक है, जिसका नाम था खोका, जब वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो दिन तो उनका वहीं पे रिलैक्स निकल रहा था, ठीक है, ठीक है। और रात को जो था, वो रात का टाइम जो उनका कट रहा था, वो कैसे कट रहा था, जब वो अपनी दिव्या क्या थी, उनकी टेलीस्कोप, ठीक है, दिव्य चक्षु जिनको उन्होंने नाम दिया था, तो वो अपने टेलीस्कोप से जब रात को स्काई में देखते, स्टार गेजिंग कर रहे थे, तो रात को वो वहाँ से उस तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे, और दिन में वो अपने आप को कैसे रिलैक्स करते थे, उनका जो ग्रैंडसन था 8-year-old खोका, उसके साथ वो जब टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उस तरीके से वो अपने आप को रात को रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है। He was regularly monitoring the comet, now clearly visible even to the naked eye। उन्होंने क्या करा, वो रेगुलरली अपना जो कॉमेट था उसको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, और अब तो क्या हो रहा था कि वो इतना विजिबल, इतना दिख रहा था कि जो लोग हैं वो नेकेड आई से, यानी कि अपनी नॉर्मल जो आंखें उनसे भी देख पा रहे थे। On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him। अब क्या हुआ, नवंबर 18 में एक स्पेशल मैसेंजर आया था, ठीक है, स्कूटर में बैठ के एक स्पेशल मैसेंजर आया था, कहाँ से आया था, ब्रिटिश काउंसिल से आया था, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल से आया था। उसने क्या किया, उनके लिए जो उनके लिए क्या लेकर आया था, दत्तादा के लिए एक मैसेज लेके आया था। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट। अब जो टेलेक्स ऑपरेटर थे, ठीक है, जो कैलकाटा के टेलेक्स ऑपरेटर थे, वो ये सोचने लग गए, वंडर्ड मतलब सोचना, ठीक है, ये सोचने लग गए कि भाई ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसा क्या अर्जेंट था जो वो अभी आए यहाँ पे। But on reading it, दत्तादा lost all his lethargy and rushed to his favorite रसगुल्ला शॉप। और क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने, दत्तादा ने वो चीज़ पढ़ी, वो बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम भाग गए, ठीक है, अपने फेवरेट जो उनका लोकल स्वीट शॉप था वहाँ पे भाग गए एकदम से, जाके उन्होंने क्या किया, उनका जो फेवरेट रसगुल्ला शॉप था वो वहाँ गए, और उन्होंने क्या करा, वहाँ जाके उस मैसेज को पढ़ा। I am confident now of buying my Christmas presents on December 15, जॉन मैकफर्सन। अब क्या हुआ, जॉन मैकफर्सन ने क्या किया, उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं क्या करूँगा, अब मैं क्रिसमस का प्रेजेंट जो है वो December 15 में खरीदने वाला हूँ, ठीक है, जॉन मैकफर्सन ने ये बोला। On December 15, Comet Datta came closest to the Earth at a distance of 80,000 kilometers। अब क्या लिखा था कि December 15 में जो कॉमेट है वो पास आया था, ठीक है, अर्थ के, और कितना पास था वो, 80,000 किलोमीटर्स जो था वो पास था। मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर इट। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और उसको देख के बड़े खुश भी हुए।
ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनिलेशन, और कुछ ही लोगों को पता है कि वो कितना पास आया था अर्थ के. When the comet had gone far away and was seen no more, Dattada felt it safe to make the following comment to his wife. अब क्या हुआ कि जब कॉमेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया था और वो अब ज़्यादा नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को जाकर मतलब बोलना स्टार्ट किया. Now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? अब क्या हुआ, वो दत्तादा जो थे अब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गए, अपनी वाइफ के सामने गए. उन्होंने बोला कि देखा, अब जो मेरा कॉमेट है वो आया भी और चला भी गया. अब तुम सेटिस्फाइड हो कि भाई जो भी डिज़ास्टर है, जो भी चीज़ें होती है वो कॉमेट से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है. कुछ जो नेचुरली चीज़ें होनी होती है वो नेचुरली अर्थ में हो जाती हैं. नो मेजर डिज़ास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, और उन्होंने कहा कि कोई भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर यहाँ पे नहीं हुआ मेरे कॉमेट से, ठीक है, जिसको लेकर यहाँ पे बातें बन रही थी या बोला जा रहा था कि भाई कुछ होने वाला है. I agree that there has been no major disaster, but there could have been some. Do you know how they were averted? इंद्रानी देवी said with quite confidence. अब क्या हुआ, इंद्रानी देवी ने भी बोला कि हाँ मुझे पता है कि कोई मेजर डिज़ास्टर नहीं हुआ है, पर क्या तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि कोई मेजर डिज़ास्टर नहीं हुआ, बट हो सकता था, ठीक है, बट देयर कुड हैव बीन सम, कि कुछ हो सकता था. डू यू नो हाउ दे वर एवर्टेड, वो कह रहे कि तुम्हें पता है कि ये किस तरीके से अवर्ट हुआ, यानी कि किस तरीके से ये जो चीज़ थी ये बदल गई. इंद्रानी देवी सेड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, उन्होंने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पूछा अपने हस्बैंड से कि आपको पता है ये कैसे बदला, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दत्तादा लुक्ड एट हर. डिड शी न्यू, हाउ कुड शी? He had never mentioned Project Light Brigade to her. He propped cautiously. I don't understand what you mean. अब क्या हुआ, जो दत्तादा है वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लग गए. अब देखते देखते वो सोच रहे कि क्या इसे पता है कि इन्हें कैसे पता चला, मैंने तो कभी नहीं बताया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में. तो वो ऐसे ही जो थोड़े से परेशान होते होते उन्होंने एकदम से पूछ लिया, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. वो कह रहे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुमने क्या बोला. इट इज़ वेरी सिंपल, देयर वर नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ यजना एट आर हाउस. तो अब उनकी जो वाइफ है वो कह रही कि ये तो बहुत सिंपल बात है कि ये सब जो डिज़ास्टर है वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या किया था, अपने घर में यजना की थी, यानी कि हवन किया था. बट आई नेवर परफॉर्म द यजना. डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट. अब क्या हुआ, जो दत्तादा है वो कह रहे कि भाई मैंने तो कभी यजना परफॉर्म ही नहीं किया था, तुम्हें याद नहीं कि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं यजना जो है उसको कभी परफॉर्म ही नहीं करूँगा, मैं ऐसी चीज़ें करता ही नहीं हूँ. ऑफ कोर्स आई डू बट वी फाउंड अ वे आउट. उसने कहा कि हाँ मुझे पता है आपने मना कर दिया था, बट हमने क्या करा, एक तरीका ढूंढ लिया था पूजा करने का. एटलीस्ट गुरुजी डिड, मतलब गुरुजी ने तो एक तरीका ढूंढ ही लिया था वो हवन करने का. ही सेड दैट इफ़ यू वर अनविलिंग टू परफॉर्म द यजना इट वुड बी ऑल राइट इफ़ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट. उन्होंने कहा कि जो प्रीस्ट थे, यानी कि जो गुरुजी यानी कि जो पंडित थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप जो अगर दत्तादा जो है वो अनविलिंग है, वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, पूजा नहीं करना चाहते हैं, तो उनका जो डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट मतलब उनकी फैमिली का जो नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या कर सकता है, वो उनकी जगह बैठ के पूजा कर सकता है, ठीक है, नेक्स्ट डिसेंडेंट जो है वो उनकी जगह जाके पूजा करेगा. सो वी गॉट खोका टू डिप्यूटाइज फॉर यू. उन्होंने कहा तो इसलिए हमने क्या करा, हमने खोका का यूज़ कर लिया, आपकी जगह हमने खोका को बिठा दिया. एंड इट हैज़ वर्कड. वो कह रही कि और इससे क्या हुआ कि ये काम कर गया, देखो हमने जो पूजा की थी ये काम कर गया. इज इन गुरु जी क्लेवर. इंद्रानीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रिम्फ. और वो जो इंद्रानी देवी है वो कहती है देखा हमारे जो गुरु जी है ना वो भी बहुत क्लेवर है, वो भी बहुत चालाक है. Dattada formed a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras dictated to him which he did not understand. अब जो दत्तादा है वो अपने तरफ से इमेजिनेशन करने लगे खोका को जो है परफॉर्म करते हुए यजना, ठीक है, वो अपने आप इमेजिन करने लगे कि जो उनका ग्रैंडसन है खोका वो किस तरीके से यजना यानी कि हवन कर रहा है, ठीक है. अब उसको कितने सारे मंत्र जो है वो बोलने पड़ रहे हैं और जो शायद उसको समझ में भी नहीं आ रहे होंगे वो सब उसको बोलना पड़ रहा है. पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इनटू द फायर, ऑफरिंग फ्लावर्स. क्या हो रहा था, जैसे आप हवन करते हो तो क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा घी जो है वो बीच में हवन में डालते रहते हो, ठीक है, वो हवन में घी डालना हो गया. फ्लावर्स ऑफर यानी कि फूल जो है वो फूल चढ़ाने पड़ते हैं, वो फूल चढ़ाने लग गया. तो वो ये सब चीज़ें जो है दत्तादा इमेजिन कर रहे थे कि वो कैसे कर रहा होगा. एंड देन द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिवाइसिंग सोल्यूशंस एंड एग्जीक्यूटिंग देम रेशनली एंड एफिशिएंटली. और क्या हुआ, ये सोचते एकदम से उनका पिक्चर जो है
माइंड में वो चेंज हो गया और वो कहाँ पहुँच गए, वो पहुँच गए कि जो साइंटिस्ट की असेंबली है वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया होगा, प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा, प्रॉब्लम को पहले समझा होगा, फिर सोल्यूशन को डिवाइस किया होगा कि किस तरीके से हम सोल्यूशंस करेंगे, उसके बाद अपना सोल्यूशन जो है उन्होंने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने सबसे पहले काम क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एनालाइज किया प्रॉब्लम को समझा, फिर अपने सॉल्यूशन को इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा, उसके बाद उस सॉल्यूशन को इन्होंने एग्जीक्यूट किया, यानी कि उसको करके दिखाया कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से हो रहा है। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी। और क्या था, ये दोनों जो चीज़ थी, दोनों पिक्चर जो था बहुत अलग अलग थी। एक में क्या हो रहा है, एक में हवन कर रहा है, ठीक है, बच्चा जो है उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसे मंत्र पढ़ने पड़ रहे हैं, उसको घी डालना पड़ रहा है टाइम टाइम पे, उसको पूजा में फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं। एक ये था पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या है कि जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, फिर सोल्यूशन निकाल रहे हैं, फिर उस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या था, हमारी दो अलग अलग चीज़ें थी, हमारी सोसाइटी की दो अलग अलग तरीके। Datta was aware of the gulf that separates the rich from the poor, the educated from the illiterate, the privileged from the unprivileged, but this gap between the rational and the superstitious seemed to him far wider, far more sinister. Will human society ever succeed in eliminating it? दत्ता दा डिड नॉट नो द आंसर। अब दत्ता दा जो थे उनको पता था कि हम क्या कर सकते हैं, हम रिच और पुअर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अमीर और गरीब लोगों को सेपरेट कर सकते हैं, हम एजुकेटेड और इलिटरेट, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों को भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, हम प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड लोगों को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है, हम रिच और पुअर को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, एजुकेटेड और इलिटरेट को सेपरेट कर सकते हैं, प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड को सेपरेट कर सकते हैं। पर ये जो गैप है, एक रैशनल मतलब क्या हो गया, रियलिटी को लेकर, और सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास, ठीक है, एक सच्चाई और एक अंधविश्वास, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही वाइडर है, ठीक है, और इतना दूर है कि लोग क्या कर सकते, कभी भी इससे बाहर निकल के नहीं आ सकते। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने जो सोसाइटी है, अपनी जो एरिया है, उससे क्या कर सकते हैं, ये सुपरस्टिशियस यानी कि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जो है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो दत्तादास जो थे उनको इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता था। तो विद दिस द चैप्टर इज एंड। ओके, सो बेसिकली इन दिस चैप्टर हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा हमारी जो सोसाइटी है उसमें दो टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। एक क्या हो गया, एक होता है कि जिसमें लोग जो है अपने अंधविश्वास के साथ रहते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, जो रियलिटी होती है। तो क्या इन दोनों का जो गैप है वो कभी ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये उनका जो लास्ट में क्वेश्चन था, ये आपके लिए भी क्वेश्चन है। तो क्या हमारे जो लोगों का अंधविश्वास है और जो रियलिटी है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो कि बहुत बड़ा गैप है, वो कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो विद दिस द चैप्टर इज एंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।